ہمارے جو ٹینک ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر سکیں. ان میں تیل ڈالنے کے لیے ان کے اندر تیل ڈالنے کے لیے ہمارے پاس جو پیسے نہیں ہیں. تو آپ یہاں سے ان کی مینٹالٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ذہن رکھتے ہیں, یا ان کے اندر یہ پاور ہے, یا ان کے اندر یہ کوشش ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کرا سکیں. تو پھر یہ پبلک کو کیوں بیوقوف بنایا جا سکتا ہے جب ملک میں جمہوریت ہو, ملک میں الیکٹڈ حکومت, جب ہم اپنی سائڈ کشمیر کو تو رائٹ دے دیں. اپنی سائڈ کو ہم رائٹ جب دیں گے نا جب ڈیموکریسی ہوگی. اور جو ڈیولپمنٹ اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ یہ مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے. اچھا, آپ کے خیال سے پاکستان سائڈ کشمیر میں جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہ سب کچھ بہتر ہے؟ پاکستان میں کوئی اس طریقے سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی؟ پاکستان میں ہمیں ریپ کے کیسز, مہنگائی اور ٹیکس اور یہ چیزیں نہیں دیکھنے کو مل رہی؟ دیکھیں اس کا اور اس کا کمپیریزن نہیں بنتا. ادھر ظلم ہو رہا ہے بائسڈ. اچھا, مطلب ٹھیک ہے, مطلب وہ ان بائسڈ نہیں ہے کہ وہ اسپیشلی دیکھتے یہ مسلم ہے تو اس کے ساتھ اسپیشلی ہو رہا ہے. پھر یہ سعودی عربیہ, یو اے ای, یہ کیوں انویسٹمنٹ وہاں پہ کرتے ہیں؟ او آئی سی کے جو ممبر ہیں کیوں وہاں کشمیر میں جا کے کیوں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ مطلب یہ مسلمان نہیں ہے, انہیں مسلمانوں کا درد نہیں ہے. وہ مال آف سری نگر جونس ہے, وہ آپ کو پتا ہے کون سی کنٹری کی طرف سے انویسٹمنٹ ہے؟ یو اے ای کی طرف سے. وہ سری نگر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہاں, انڈیا میں بھی 1 ارب 40-45 کروڑ کی آبادی ہے, دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں آپ کے خیال سے؟ اور کیا پاکستان سے بہتر ڈیموکریسی ہے یا وہاں پہ؟ پاکستان سے بہتر ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں کے جو اسٹیٹس ہیں ان کے وزیر اعلیٰ نے ان کے اسٹیٹس کو کیا کیا فیسلٹیز. شنکر دوستوں, پاکستان میں 5 فروری کو کشمیر ڈے منایا جاتا ہے. پاکستان کی پالیٹکس اپنی جاہل جنتا کو کشمیر ڈے کے نام کا چورن چٹا کر جنتا کو خوش کرتی ہے, اور پاکستان محلے کا چودھری بن کر کشمیر ڈے مناتا ہے. تو کون میں خام خواہ, ایسا پاکستان کے حالات ہیں. کیونکہ پی او کے والے بھی اب نعرے لگاتے ہیں کشمیر بنے گا ہندوستان, کیونکہ کشمیر سے بجلی لے کے کشمیریوں کو ہی مہنگی بیچتے ہیں. اور پی او کے والے اب تو پی او کے میں بجلی کے کھمبے پھینک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں ہندوستان کے ساتھ جانا ہے. اور چلیں پاکستان, جے شری رام. بنا رہے ہیں, بڑی کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ ساری مافیا ایک بندے کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں اور اس کو کٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں کیا کیا انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں عمران خان کو کٹیل کرنے کے لیے, اس کی پارٹی کے اوپر کیا کیا مظالم کیے ہیں. آپ دیکھیں یہاں کے رہنے والے باشندوں کے اوپر ان کے گھر والوں کی عزتیں پامال کی گئی. تو ابھی ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں ابھی, مطلب, اور بلوچستان. اچھا, بلوچستان کی اگر بات کریں, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر تو ہمارے رہنے والے جو سٹیزن ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, ان کی پروٹیکشن نہیں ہے. تو ہم کس طرح کشمیر کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ ان باتوں سے کافی حد تک میں ایگری کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو, مجھے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے, سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے گھر میں جو سا اگر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے. یہ اب پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ کشمیر کے نام پہ جو 76 سال سے ہم نے نعرے لگائے, اپنی پبلک میں جو نفرتیں بانٹی انڈیا کو لے کے, اور یہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سر, میں کہتا ہوں کہ اگر میں ابھی کسی انڈیا سائڈ کشمیر سے کسی یوتھ کو کال کروں اور ان سے کہوں کہ بھائی یہ بات کریں آپ, اور یہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے آپ بتائیں, اگر وہ کہیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اگر وہ کہیں کہ بھائی انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے, اگر وہ کہیں ٹورزم کے اوپر ورک ہو رہا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں, میں کہتا ہوں آپ یہ بتائیں G20 کی اگر بات کریں وہ وہاں پہ ہوا کہ نہیں اس کا ایک ایونٹ؟ تو جیسے ہمارے بھارت میں یو پی ایس سی کے ایگزام ہوتے ہیں, ویسے ہی پاکستان میں سی ایس ایس کے ایگزام ہوتے ہیں, اور سی ایس ایس پڑھنے والے بچے ہی جاہل ہوں گے تو عام جنتا کی نالج کیا ہوگی؟ سنو اس جاہل کی بات, کشمیر پر اس کو کیا گیان ہے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جہاں وہ انفراسٹرکچر کر رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں, اس سے پیچھے ایک ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا نے سب سے پہلے یہ اسٹیٹس کیوں ختم کیا ہے 370 اور 35 ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا یو این او کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کا پرماننٹ ممبر بننا چاہتا ہے, اور پرماننٹ ممبر وہ بن سکتا ہے کہ جس کا کوئی بھی ڈسپیوٹڈ ایریا نہ ہو, تو ڈسپیوٹڈ ایشو نہ ہو بارڈر کا, تو وہ اس کو ختم کر کے پرماننٹ ممبر بننا چاہتا ہے. اور جو بات ڈیولپمنٹ کی ہے, ان کے اپنی کنٹری کے لیے وہ بہتر کر رہے ہیں نا. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پرماننٹ ممبر بننا چاہتے ہیں تو ہم کہیں کہ اس لیے انہوں نے یہ آرٹیکل 370 ہٹا دیا, تو یہ کوئی لاجک تو نہیں نا ہے. وہ انہوں نے اگر بننا ہے تو ان کا رائٹ ہے.
वो देखिए इसकी इशू ये है कि जो उनका ऑफिशियल स्टेटस है कश्मीर का वो खत्म करने के बाद कि जो उधर मुसलमानों को जो राइट्स है उधर 10-10 साल की बच्चियों के साथ ज्यादतियां हो रही है, नौजवानों को जो है वो शहीद किया जा रहा है, उसके पीछे ये रीजंस हैं। उन्होंने स्टेटस तो खत्म किया अपने फायदे के लिए, और जो डेवलपमेंट अगर वो कर रहे हैं तो वो ये मुसलमानों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं कर रहे। अच्छा, आपके ख्याल से पाकिस्तान साइड कश्मीर में जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो सब कुछ बेहतर है? पाकिस्तान में कोई इस तरीके से ये चीजें नहीं हो रही? पाकिस्तान में हमें रेप के केसेस, महंगाई और टैक्स और ये चीजें नहीं देखने को मिल रही? देखिए इसका और उसका कंपैरिजन नहीं बनता। उधर जुल्म हो रहा है बाइस्ड, अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब वो अनबाइस्ड नहीं है कि वो स्पेशली देखते ये मुस्लिम है तो उसके साथ स्पेशली हो रहा है। फिर ये सऊदी अरेबिया, यूएई, ये क्यों इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं? ओआईसी के जो मेंबर हैं क्यों वहां कश्मीर में जाके क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मतलब ये मुसलमान नहीं है, इन्हें मुसलमानों का दर्द नहीं है। वो मॉल ऑफ श्रीनगर जोन है, वो आपको पता है कौन सी कंट्री की तरफ से इन्वेस्टमेंट है? यूएई की तरफ से। वो श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसकी आज हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह भी है कि यूनिटी नहीं है। हर कंट्री, चाहे इस्लामिक कंट्री है, कोई भी अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। अब सऊदी अरब या अमेरिका है, वो इंडिया के साथ उसके इंटरेस्ट की ट्रेड की इंटरेस्ट है, ठीक है, उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, वो अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, मुस्लिम यूनिटी को नहीं देख रहे। ठीक है, तो फिर अभी आप ही कह रहे थे ओआईसी बड़ा जो है ऑथेंटिक बॉडी है, कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये इफेक्टिव हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि अगर वो यकजान हो जाए, वो उनमें यूनिटी आए, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। देखिए अगर आज यूएनओ इफेक्टिव है, नेटो इफेक्टिव है, तो ये भी हो सकता है। जो हमारा कश्मीर का इशू, उसके 3 बेहतरीन सोल्यूशन है। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? सोल्यूशन जी, सोल्यूशन बताने लगे थे, ये तो सबसे मेन चीज है जी। कश्मीर सबसे पहले जो है ना, वो हम मुसलमान है, अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार कहा जिहाद करो, इसका सबसे बेहतरीन अल जिहाद है। अगर सारी मुस्लिम इकट्ठी हो जाए, जिहाद सबसे बेहतर। दूसरा क्या है? टेबल टॉक। अगर आप टेबल टॉक पे आए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करें, तो इसको बेहतर किया जा सकता है। तीसरी क्या चीज है कि आप अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेकर जाए। जब आपकी इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो जितनी भी दुनिया के अंदर सुपर पावर्स हैं, कंट्रीज आपको टच करेंगे। आप देखें 1965 में देखें, जब अयूब खान अमेरिका जाता था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट आकर विजिट करता था, उसको इस्तकबाल करता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट 200 अरब डॉलर तक थी, जो आज 4 अरब है। उसका एक और रीजन ये भी थी कि उस टाइम जो हम यूएस के पॉकेट में थे और यूएस से हमें फंडिंग आ रही थी, सीटो सेंटो का हम जो हिस्सा बने हुए थे, उसकी रीजन ये भी है। और एक तो ये, और दूसरे नंबर पे आपने जो 3 बताए हैं कि भाई ये हाल है, सबसे पहले बोला जिहाद होना चाहिए। जिहाद तो अफगानिस्तान पाकिस्तान आपस में कर रहे हैं, जिहाद ईरान पाकिस्तान आपस में कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जिहाद उनके साथ होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरे नंबर पे इकोनॉमी की आपने बात की, मजबूत होनी चाहिए। इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि भाई इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए, और वो अपने कंट्री के ऊपर जो हम अपने कंट्री के लोगों के लिए जो सा भी बेहतरी का काम कर सके, वो करना चाहिए। जब इकोनॉमी आपकी बेहतर होगी ना, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया आपको टच करती है, ठीक है, आपके साथ ट्रेड करती है। लेकिन जब देखें, वो एक कहते हैं ना, एक मिनट में अगर एक चौधरी हो तो सब उसकी मानते हैं। तो आज अगर बड़े सुपर पावर की तरफ लोग क्यों जाते हैं? उसकी ये रीजन है कि हमारी तरफ क्यों हमें लोग भिखारी कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी, हम इकोनॉमिकली डाउन हो चुके हैं, हम डाउनफॉल कर गए। तो इसी वजह से जब हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, डेफिनेटली कंट्रीज सुपर पावर्स हमारी तरफ आएंगे, फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूज होकर इसको हल किया जा सकता है। इस टाइम पे दूसरी बात, मैं एक आपकी बात के साथ इत्तेफाक नहीं करता जहाद की। देखिए अफगानिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दी है जहाद से। 60,000 मुजाहिदीन ने। आपको पता है 2021 में जब अमेरिका इधर से निकला, जलील होकर तो पाकिस्तान से क्यों लड़ रहे हैं? मतलब मुस्लिम कंट्री से लड़। देखिए हमने खुद जो है वो अफगानियों के जो है वो पेटों के अंदर जो है वो खंजर खबोए। क्यों? देखिए हमारी सरजमीन से 40,000 टाइम अमेरिकन जो है वो हमारी एयरबेस उन्होंने यूज की है। हमने अपनी जो है वो स्पेशली जगह दी है, प्लेसेस दिए, जिस वजह से अफगानियों को कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। तो उस टाइम पे हमें कश्मीरी याद नहीं थे आ रहे? मतलब जिस टाइम पे हम यूएस को अड्डे दे रहे थे ड्रोन अटैक के लिए अफगानिस्तान में, तो उस टाइम हमें ये समझ नहीं आया कि भाई ये भी मुस्लिम, वो भी मुस्लिम। एक साइड पे हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, और दूसरी साइड पे कश्मीर की आवाज उठाते हैं, और एक साइड पे हम जो अपने अफगानी भाइयों को मार रहे हैं। हम कश्मीर की आवाज उठाते हैं जैसे फॉर्मली, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। अब कल क्या होगा? मतलब स्पीचेस तो हर जगह होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? हर बंदा कहते हैं मैं कश्मीर के साथ खड़ा हूं। वो एक बुजुर्ग आलम दिन थे, वो कहते थे कि हम साथ खड़े उस वक्त तक जब तक आखिरी कश्मीरी शहीद नहीं हो जाता। जब सारे मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, हम जाएंगे, दुआ मांगेंगे, आ जाएंगे, बस बहुत दुख हुआ। तो ये हल नहीं है उसका। मैं ये गारंटी से बात कहता हूँ, देखें हर एक की अपनी ओपिनियन है, ये भाई की अपनी ओपिनियन है, किसी को कोई डिसएग्री कर सकता है, कोई एग्री कर सकता है, इनकी अपनी ओपिनियन है। लेकिन मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ कि अगर सोशल मीडिया पे ये इंडिया साइड कश्मीर की यूथ और पाकिस्तान साइड कश्मीर की यूथ की वोटिंग करवा ली जाए, तो मोस्टली लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान हमारा मुकदमा लड़ना छोड़ दे, पाकिस्तान अपनी हालत ठीक कर ले, ये हमारे साथ खड़ा ना छोड़ दे। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो वहां के लोगों से, मैंने खुद कश्मीर, पाकिस्तान साइड कश्मीर का विजिट किया और वहां पे लोगों से
ऑब्जर्व किया। मैं कहता हूँ वहाँ के यूथ ये कह रहे हैं कि भाई बड़ा आपने साथ दे दिया, अब हमारा साथ ना दें। देखिए अब मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर आपने कश्मीर को करना तो पाकिस्तान का हिस्सा ना बने, इंडिया का भी ना बने, उनको इंडिपेंडेंट ठीक है। स्टेट बना दे, वो आप अपनी सर जिंदगी खुद जी सके। आप ये जो भाई ने बातें की हैं, सबसे पहले तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो 3 इन्होंने हल बताए हैं कि जिहाद हो जाए या फिर इकोनॉमी बेहतर हो जाए या टेबल टॉक हो जाए, इनमें से सबसे बेहतर कौन सा लगता है? और बाकी जो इनकी बातें ओवरऑल इन्होंने बातें की हैं, जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, क्या पाकिस्तान में जो चीजें हो रही हैं हम उनके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाते? बलोचिस्तान की अगर बात करें और कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, क्या समझते हैं कहाँ पे ज्यादा मामला खराब है और कहाँ पे हमें ज्यादा बोलने की जरूरत है? मतलब बलोचिस्तान के लिए जो हमारे हाथ में है, जहाँ पे हम बेहतरी अभी ला सकते हैं, वहां बोलने की जरूरत है या दूसरी साइड कश्मीर की? इशू ये है सबसे पहले कि आपने वो शेर सुना होगा अल्लामा इकबाल का कि मुस्लिम उसे कहते हैं कि छुबे कांटा जो काबुल में, ठीक तो है। हिंदुस्तान का हर पीरो जवान जो है वो बेदार हो जाए। ठीक हो गया जबरदस्त। आपने ये देखा होगा कि कश्मीर तो दूर की बात है, ये तो अपने लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। अपने पाकिस्तान में अपने पाकिस्तान में अपने सिटीजन की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। आपसे पहले भी ये कहा है कि आप देखें कि इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लेने के लिए लोगों के साथ कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए ठीक हैं है। और कितना लोगों को रुस्वा किया और कितना कुछ किया है। ठीक है। दूसरी बात रही जहाद की, हमारी आर्मी के जो जर्नैल है ना वो जहाद करना नहीं चाहते, उनके अंदर इतनी पावर ही आपने नहीं भी है। बाजवा साहब की स्टेटमेंट बताई तो है कि वो कहते हैं पेट्रोल ही नहीं है टैंकों के लिए। आप देखिए यहाँ जहाँ तक बात कश्मीर की है, ये कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। कश्मीर का मुकदमा तब लड़ा जा सकता है जब मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इलेक्टेड हुकूमत जब हम अपने साइड कश्मीर को तो राइट दे दें। अपनी साइड को हम राइट तब देंगे ना जब डेमोक्रेसी होगी, यही जब चीज़ है। इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, अच्छा जब सर, मैंने मुस्तहकम गवर्नमेंट आएगी, तब जो है वो ठीक राइट है, मिलेंगे एक ना। और सवाल किया था मैंने कि इस टाइम पे बलोचिस्तान की आवाज उठाना, बलोचिस्तान में जो उनसे डेवलपमेंट के ऊपर बात करना वो ज्यादा बेहतर है, हमें योम बलोचिस्तान मनाना बेहतर है कि भाई उनके जो जुल्म हो रहे हैं, मिसिंग पर्सन है, उसके ऊपर बात करें, या फिर कश्मीर की कौन सी चीज हमारे हाथ में है अभी? मुसलमान जहाँ भी हो वो एक दूसरे का भाई होता है। ठीक है। हमें उनके भी दर्द दुख की तकलीफ है और इनके भी है, और इनको सबसे पहले अपने घर को सबसे पहले ठीक करना ये चाहिए, चीज है। फिर कश्मीर की तरफ जाना ठीक है। चाहिए। आप भाई इसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन 1-2 मिनट की देना चाहेंगे या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें इस साइड पे थोड़ा सा आ जाए। जी जी। सबसे पहले हमें खुद को बेहतर करना ये चीज़ चाहिए, है, और agree करता हूँ। अगर मुल्क में डेमोक्रेसी होगी ठीक है। तो हम अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं इसको, यानी कि ठीक है। हर फोरम पे बात कर सकते हैं, कोई ठीक हमारी सुनेगा भी। सुनेगा, हमारी कोई और- वैल्यू होगी बात की। और यहाँ अगर डेवलपमेंट्स होंगी तो हमारी भी, जैसे इंडिया अभी सुपर पावर बनने जा रहा है, ऐसा ठीक ऐसा है। वो अब उसकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, ठीक है। मल्टीनेशनल, वो इसीलिए हो रहा है कि उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर है, सारा कुछ बेहतर है। अगर हम भी चाहते हैं सारा कुछ बेहतर हो तो डेमोक्रेसी आनी चाहिए, जबरदस्त, मैं ताकि agree करता हूँ। ताकि अच्छे तरीके से लोग इसको अपना लेके चल सकें और हक की बात करें। ठीक है। और आज के दौर में हमें जंग की, लड़ाई की बात करनी चाहिए या मुकाबला करें लेकिन टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें, लेकिन आईटी में मुकाबला करें, इकोनॉमी में, ये बात करनी चाहिए? हमें सबसे पहले तो अपनी डेवलपमेंट्स करनी चाहिए, ये चीज है, ठीक ऐसे उसी ही- में मुकाबला हो सकता है। जैसे हम कहते हैं, बड़ा कहते हैं हमारा इंडिया दुश्मन है, हम ऐसे कर ठीक है। देंगे, हमारी फौज ऐसे कर देगी, लेकिन हम ये देखें कि हमारे पास उतने Practically- वसाइल भी हैं कि हाँ, नहीं है। प्रैक्टिकली क्या हो तो सकता है? जब भी देखें, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि 1965 की जंग हमने जीती, ठीक है। उसमें ज्यादा रोल तो आम आवाम का था। वो जो लोग टैंकों के सामने हैं वो कौन थे? 1971 की जंग की अगर बात करें, उसके अलावा बाकी जो कारगिल की वार की बात करें, वो चीजें तो सारी हमारे सामने हैं और जज्बे तब भी होने चाहिए थे, तब भी हमें जीतना चाहिए था। अच्छा सर, कश्मीर के लिए आपको बड़ा दर्द है, ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन है। ये चाइना में मुस्लिम रहते हैं, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, जुल्म किसी भी जगह पर हो, किसी के भी, नहीं, वैसे आपके ख्याल से चाइनीज मुस्लिम किस कंडीशन में रहते हैं? देखिए चाइनीज मुस्लिम उससे भी बुरी कंडीशन में, लेकिन उधर हमारे इंटरेस्ट है। बात वही आगे चीज़ इंटरेस्ट की है। ये बात ठीक है। बात मैंने ऑलरेडी यही कही कि अपने अपने मफाद इंटरेस्ट की बात। देखिए हम कश्मीर के नाम पर, ठीक है, और भी डिफरेंट नाम पर हम डॉलर ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अगर हम उनकी बात करेंगे तो ये सी पैक जितने बड़े बड़े चाइना नाराज हो चाइना जाएगा। नाराज हो तो जाएगा। इसका मतलब है इधर मजहब या मुस्लिम उम्मा बात- ये कंसेप्ट सिर्फ बात- चूरन है, प्रैक्टिकली अपना फायदा देखा जाता है। प्रैक्टिकली अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान में ये इलेक्शन सिचुएशन चल रही है, इधर अब जिसको भी देखेंगे कोई भी बंदा वो अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। ठीक है। लेकिन हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं कि पूरी कौम को पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, ये चीज है। हर एक को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जब जबरदस्त। हर बंदा अपना रोल प्ले करेगा तो कंट्री फिर डेवलप होगी। ऐसे ही है। अब आप चाइना की बात कर रहे हैं तो चाइना देखिए उसने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। मोजे ठीक तंग हो में गया। 70 करोड़ लोग, यानी ऐसा ही 3 पाकिस्तान बनते हैं। तो कैसे निकाला कि लोगों को ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेकर आया। शायद अवेयरनेस दी है। सबसे बड़ी चीज अवेयरनेस है, ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेकर आया, फिर बेहतरी हुई है। अच्छा। आज पाकिस्तान में भी देखे जिस तरह की सिचुएशन, हर देखे डिपार्टमेंट तो है, उनको तो करना पड़ेगा। ठीक है। हम अवाम का भी कुछ राइट है, अवाम को अवेयरनेस होनी चाहिए, हर बंदा अपने अपने हिस्से का किरदार अदा काम करे। जरूर करे। बिल्कुल ऐसे और ही है। अहमद फराज ने कहा था ना कि शिकवाए जुल्मते शब्द से तो कहीं बेहतर है शिकवाए
जुल्म शब से तो कहीं बेहतर है कि अपने हिस्से की कुछ शमा जलाते जाते चले। कि कम अच्छा, से कम हर बंदा अपना अपना रोल तो प्ले रोल करे। प्ले करे। देखें जो पाकिस्तान की यूथ है, खास तौर पे एजुकेटेड यूथ है, उनसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। इनकी अपनी ओपिनियन है, इनकी अपनी ओपिनियन, लेकिन हमने कश्मीर के हवाले से बात कर ली, हमने चाइना के मुस्लिम्स के हवाले से बात कर दी। लास्ट में हम ये बात करेंगे, इस टाइम जो मोस्टली यूथ है पाकिस्तान के इलेक्शंस को किस नजर से देख रही है, कितना इंटरेस्ट है, मतलब क्या लगता है कि इनके वोट से, मेरे वोट से, इनके वोट से कोई पाकिस्तान में चेंज आ सकता है? दोस्तों, हाईली एजुकेटेड पाकिस्तानी जो कि सस्ता नशा करके इंटरव्यू देने लगते हैं, आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।